Do every relation is a function? No. Every relation is not a function, but every function is a relation. See, every subset of A cross B obviously is a relation which we are talking about for last few sessions. And a particular relation which follows a simple condition. And the condition is very simple. Just try to understand the definition and you will get. See, if in a relation each and every element of replacement set, the first thing, each and every element of replacement set is related to one and only one element of codomain, then the relation is said to be a function. सामान्य भाषा में भी कहें तो कौन सा संबंध फलित होता है? केवल वही संबंध जो एक निश्चित शर्त, जो उस संबंध के लिए जो निश्चित शर्तें होती है उन्हें पूरा करें, वही संबंध फलेगा, वही संबंध फलन होगा. So a relation is said to be function if each element of replacement set has one and only one image. यहां पर डेफिनेशन में शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको दूर करते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज it is needed not to be numbers only, that we have discussed in the very start. See, it is not necessarily a number or variables, it can be anything, right? Let's talk about it. See, we have a set A, that is replacement set, and a set B. If I define this is related to this and it is related to, it is a relation of course from A to B, because x1 y1 x2 y2 x3 y3, these three elements, the set containing these three ordered pairs is obviously the subset of A cross B. Is it a function? Let's check it out. Each element of replacement set, there shouldn't be any element which is left out. Each and every element of replacement set must have a unique image. So it is not a function. Okay, let's assign this value x5 is related to y6 and x4 is related to y5, whatever these numbers or things are. Okay, is it a function? We are to check the replacement set. Each and every element of replacement set has one and only one image. सिर्फ और सिर्फ कितनी इमेज हो उसकी? एक से ज्यादा इमेज किसी की ना हो. तो यहां पे देखा कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए. Each and every element must be associated to one of the element, and one and exactly one, neither less than one. मान लिया यहाँ x6 होता and it is not related to someone, तो क्या होता? This is a relation but not a function. बात करते हैं क्या ऐसा होता तो ये फंक्शन होता. Let's check. Each and every element of replacement set, yes, is connected to a unique element of codomain. बिल्कुल it is a function. अब आप कहोगे ये यूनिक का. See, for this it has a unique image, that is y6. When I talk about this element, each element, we will talk about each element whether it is related or not, and if it is related then it must be related to a unique element. It is related to a unique. See, I am Rajendra and my brother Narendra. If we give a statement, I have a unique biological mother, what will happen is my mother and my brother's mother is going to be same. But our statement, where I say this must have a unique mother, we are not talking about this is having two sons. No, we are not talking from B to A. We are talking of relation, the possibility of this relation to be a function from A to B. So this is a function from A to B. Why? Because each and every element of domain has a unique image. See, uniqueness doesn't mean, see,
suppose there are 4 students, 1, 2, 3, 4, 5, and all get 10 out of 10 marks. Right? It is a function. Of course it is a function. Why? Because it fits on the definition of function. The definition of function says each and every element of, अगर यहाँ ऐसा होता, छठा व्यक्ति होता, इसने एग्जाम ही नहीं दिया होता, तो ये किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होता, इसके मार्क्स नहीं होते कुछ, तो हम कहते हैं दिस इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन. फंक्शन क्यों नहीं हुआ भाई? काम क्यों नहीं कर पा रहा ये रिलेशन, ये फंक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सारे के सारे को न्याय नहीं मिला. तो सीधी सी बात ये, यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए. और यहाँ और ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि एक ही जो रोल नंबर है इसके एक ही सब्जेक्ट में 10 भी आए और 15 भी आए एक ही एक टेस्ट में, ऐसा नहीं हो सकता. सो वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन या यूनिक का ये मतलब नहीं है ये तेरी हो गई इमेज, राइट, कि ये तेरी हो गई तो अब किसी की नहीं हो पाएगी. इट्स नॉट लाइक दैट. If it is image of one, it can be image of two, but one cannot have more than one image. Each and every element will have exactly one image, not less than one, neither less than one. If an element is there which is not having any image, say x7, then it is not a function. Suppose this is having 2 images, then also it is not a function. So for function we have 2 things. First, each element must have a mapping with some of the element and exactly one element. Each and every element is related to one and only one. The word unique, कई बार हमें बस वो unique word लगता है, नहीं नहीं ये भी 10 से related है, ये भी 10 से. कई बार simple question पूछ लेते हैं which of following is a function, और कई लोग कहते हैं it is not a function, but it is function because it is following. किसी एक से, इधर से 2 तीर नहीं चलाने. आप ऐसे देखिए, हर एक को तीर चलाना, लेकिन किसी को भी 2 तीर नहीं चलाने, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए. अगर ये है ओके, x7 is related to it, no problem at all. More than one element can have the same image, but one element cannot have more than one image. That is the definition of function. So, and sometimes, and in simple language, some of the people says function is a machine. Function is a machine. Machines होती है, उसमें it gives an output for each corresponding input. उसके अंदर जो भी एक इनपुट दोगे तो एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आएगा. हो सकता है 2, 3, 4 चीजें हैं, उसको डालने पे सेम आउटपुट आए, लेकिन एक चीज डाली उसका आउटपुट एक ही है. दैट इज इट. सिंपल. अगर आप एरो डायग्राम से याद रखें, यहाँ एक से ज्यादा एरो नहीं होना चाहिए, हर एक को एरो होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में बात करें, इफ आई गिव अ रिलेशन लाइक दिस 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, it is a function if it is defined in 4, 5 and 5, 4. Suppose it is a relation defined in 1, 2, 3, 4, 5. So I am to check what that we have done in class 11. Let's have a look. Each element of domain 1 has an image, 2 has an image, 3 has an image, 4 has an image, 5 has an image. Well, if I repeat this 4 and even I take 5, 3, it is not a function because the first element of an 2 ordered pair is repeated. That means the same element 4 is having 2 images. Once it has its image 5 and next time it is having image 4. That means element is 1 but it is having 2 images. So one element, if one element is having more than one image, then it is not a function. Suppose I remove it and even I remove this 5, 3, what I will get is it is not a function. It's a relation but not a function. The reason is that replacement set was 1, 2, 3, 4, 5. 1 is having image, 2 is having image, 3 is having image, 4 is having image, but 5 is not having any image. That's why it is not a function. Now, so we have talked, let's talk about this important point, vertical line test for a function. What is it? Let's try to understand this test. In the year 2014, CBSE issued its sample paper, and in the very first question it was asked which of the following, the 4 graphs of some curves were given
and the question was which of the following is a function. अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं. It's not like that. You have studied the graphs of function in class 11th and we will be dealing with graphs throughout the 12th in differentiation and lot of more topics. So you cannot refuse it. So we have 4 curves in CBSE sample paper 2014. This kind of some curves were given and it was asked which of the following is a function and which one is not. So we take the help of vertical line test. What it says, if you take a vertical line and the vertical line intersect the curves at, if the vertical line intersect the curve more than once, then it is not a function. If no vertical line intersect the curve more than once, means I take a vertical line at each and every point. If I move it, it is cutting the curve at one point only. See, if I take the curve like this or like this, what will happen? If I take a vertical line, it will cut the curve at more than one point. That is for a particular, suppose x is equal to 1. For a particular value of x, x is equal to 1 but y is having 2 values. Suppose it is having plus 1 comma 2 and 1 comma minus 2. For a particular value of x, it is yielding 2 values of y. That means it is against the definition of function. What is the definition of function? Each element of domain means x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए. तो यहाँ पर इस टाइप का ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन, बट इट इज फंक्शन. इफ यू टेक अ वर्टिकल लाइन, इफ यू परफॉर्म द वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये कहीं भी लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रही. इन द सेम वे हियर it is a function. This also is a function, but this is not a function. If I take this vertical line, it is cutting the curve more than 1, more than 2, 3 points. So it is not a function. This is how we can check it graphically. The definition is simple. If for a particular value of x, you can find 2 values of y. That means if you can find more than one image of any element, then it is not a function. Now we will talk about kinds of functions, types of functions. Now, अब हम बात करते हैं types of functions, kinds of function. दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, या तो 1-1 है फंक्शन या many one. देखो, डोमेन का हर एक एलिमेंट तो किसी ना किसी से रिलेटेड होगा ही, यानी ये तो 1, इधर से तो 1 ही जाएगी. ये देखना है क्या को डोमेन का कोई एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड तो नहीं है. अगर ऐसा है तो वो 1-1 नहीं है. लिसन, अ फंक्शन इफ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट x, इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू सेट y, अंडर f आर डिस्टिंक्ट, मीन्स अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस भी अलग अलग ही हो, तो वो कैसा कहलाएगा 1-1, और अदरवाइज वो कैसा कहलाएगा मैनी वन. सो जो फंक्शन 1-1 है वो मैनी वन नहीं होगा, और जो मैनी वन है वो 1-1 नहीं होगा. मीन्स इट विल आइदर 1-1 और मैनी वन. मान लिया हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया, यहां हम देख सकते हैं कोडोमेन का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है. यहां डी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज 1-1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन आर हैविंग डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन. ये डी होता तो भी ये 1-1 रहता, और डी नहीं है तो भी 1-1. लेकिन अगर यहां पर कोई एक्स्ट्रा होता, सपोज ये दिस इज रिलेटेड दिस इज रिलेटेड टू दिस इज रिलेटेड टू दिस इज रिलेटेड टू दिस, क्या ये 1-1 है? ऑफ कोर्स ये 1-1 है. वाई? बी का, वाई सेट का कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट की दो प्री इमेजेस नहीं है, यानी अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस हैं. दैट वी आर टू सी. यहां पर देखते हैं दिस दिस दिस, क्या ये 1-1 है? फंक्शन तो है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि एक की इमेज एक ही है और कोई भी यहां खाली नहीं छोड़ेंगे. फंक्शन है. क्या ये 1-1 है? नहीं. क्यों? बिकॉज अमर और अकबर दोनों को ए ग्रेड मिल गया, सेम ग्रेड. अगर मैं ये बात करूं ग्रेड, यहां सबको अलग अलग ग्रेड, अलग अलग बच्चे, अलग अलग ग्रेड, तो 1-1. अलग अलग लोग, अलग अलग ग्रेड, सबको ग्रेड मिला हुआ है. यहां देखते हैं
हम ऐसी स्थिति करें, इसको अलग ग्रेड, इसको अलग ग्रेड, इसको अलग ग्रेड, इसको भी अलग ग्रेड और इसको भी अलग ग्रेड, ये फंक्शन कैसे कहलाए? ये वाला 1 1 है, दिस वन इज 1 1, दिस वन ऑल्सो इज 1 1, दिस ऑल्सो इज 1 1, बट दिस इज नॉट 1 1। मान लिया इसको ऐसा करते कि ये भी डी से रिलेटेड और ये भी डी से, सो नाउ दिस इज मैनी वन, मैनी वन, this is 1 1, again this is many one, and this as one distinct elements has distinct images, so this is 1 1। अब बात करते हैं 1 1 के बाद में दूसरा, या तो कोई फंक्शन 1 1 है और 1 1 नहीं है, देन अदरवाइज इट इज मैनी वन। एक भी एलिमेंट मिल जाए जिसकी एक से ज्यादा इमेज है, 1000 एलिमेंट है, या सबके अलग अलग है, लेकिन लास्ट में दो एलिमेंट ऐसे, एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी 2 प्री इमेजेस है, देन ऑब्वियसली इट इज नॉट 1 1। मीन्स जब भी नहीं प्रूव करना हो, नॉट 1 1 प्रूव करना है, 1 कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल इज इनफ, और जब प्रूव करना है तो जनरल प्रूफ। हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हाउ टू प्रूव अ फंक्शन टू बी 1 1 and on to, and if it is function is 1 1 and on to, 1 1 होने का मतलब it is known as इंजेक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन जैसे एक लगा इंजेक्शन, एक का एक से ही, एक का एक से ही, तो दिस इज नोन एज इंजेक्शन। इफ अ फंक्शन इज 1 1 देन दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज इंजेक्शन। तो इंजेक्शन बायो में नहीं होते, मैथ्स में भी होते हैं इंजेक्शन। अ फंक्शन विच इज 1 1 इन नोन एज इंजेक्शन। ठीक है, तो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन नहीं है, ये इंजेक्शन नहीं है क्योंकि 2 प्री इमेजेस है इसकी, और ये इंजेक्शन। अब दूसरी बात करते हैं, अगर कोडोमेन के सभी एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज जरूर हो, जैसे यहां पर नहीं है, यहां कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज है, यहां कोडोमेन के कुछ एलिमेंट ऐसे जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, यहां कोडोमेन का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, चाहे एक हो या एक से ज्यादा। अगर ऐसा हो कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इमेज, every element of codomain is image of some of the element of domain, that is for every wise element of codomain it must have some x related to it, then it is onto। यानी onto होने की शर्त सीधी सी है, इधर तो कोई खाली हो ही नहीं सकता था, इधर ऐसा नहीं हो सकता था किसी से रिलेटेड ना हो। अगर यहां एक भी एलिमेंट ऐसा रह जाए जो किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे को बोलते हैं इनटू। क्या बोलते हैं? इनटू। और अगर सारे के सारे एलिमेंट यूज हो जाए जैसे यहां हुआ है, तो दिस इज ऑन टू, दिस इज इनटू। इनटू क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट है, इनटू मतलब अंदर, कुछ एलिमेंट बाकी रह गए, ऑन टू यानी पूरा कवर हो जाए। दिस इज ABCD सारों की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो ये कैसा हो गया? ऑन टू। तो ये 1 1 ऑन टू है, जबकि ये 1 1 अगर मैं यहां D लिख दूं तो ये कैसा हो जाएगा? ये 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू ना होके कैसा हो गया? इनटू। इनटू क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज ना हो, तो वो ऑन टू ना रह के कैसा हो जाएगा? इनटू। तो ये इनटू है, जबकि ये कैसा है? ऑन टू। यहाँ सारे एलिमेंट काम में नहीं आ रहे, मतलब इनटू। यहाँ सारे एलिमेंट काम में नहीं आ रहे कोडोमेन में, यानी कि रेंज जो है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, पूरे के पूरे एलिमेंट अगर काम आ जाए, यानी रेंज क्या हो जाए? कोडोमेन के इक्वल आ जाए, उस केस में क्या होगा? ये ऑन टू। हिंदी शब्द इतना अच्छा है इसके लिए, आच्छादक। आच्छादक का मतलब आकर पूरा छा जाए, पूरा कवर कर जाए। जब पूरा कवर कर जाए, वैसे भी ऑन टू का भी यही मीनिंग, ऑन टू यानी पूरा, इनटू यानी अंदर। तो अगर एक भी एलिमेंट खाली रह जाए देन इट इज इनटू, और सारे के सारे एलिमेंट यूज हो जाए तो ऑन टू। अब आप कहोगे ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ग्राफिकली बहुत कम क्वेश्चन इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एरो डायग्राम वाले होते हैं। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो A से B में फंक्शन है और वापस B से A में भी फंक्शन डिफाइन किया जा सके, और इसी को बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। विच फंक्शंस आर सेड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन, दैट इज अवर मोटो। अदरवाइज ये कुछ काम में नहीं आने वाला। देखते हैं कैसे।
ये ए से बी में फंक्शन है, क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन फिट है, हर एक की इमेज है और सिर्फ एक ही इमेज है। क्या ये बी से ए में फंक्शन है? देखते हैं। बी से ए की तरफ इसकी इमेज मिल गई, इसकी इमेज मिल गई, एक ही इमेज है, इसकी एक ही इमेज है, लेकिन इसकी कोई भी इमेज नहीं अगर मैं बी से ए की तरफ देखूं यानी वाई से एक्स की तरफ देखूं। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। It is function from a to b, but b to a, that is from y to x. The function cannot be defined. The inverse of this function cannot be defined. Let's check this. This is not a function क्योंकि c अगर मैं इधर से इधर देखूंगा c की कोई इमेज नहीं है, e की भी कोई इमेज नहीं है। Moreover इस d की दो इमेजेस होंगी अगर मैं इधर से इधर देखूंगा। इसका मतलब this is also not an invertible function. इसकी बात करें, ये क्यों नहीं इन्वर्टिबल? एक तो ये कि c और d की कोई इमेज नहीं होगी और प्लस ए की दो इमेज हो जाएगी, तो ये भी नहीं। तो 1 1 इंटू जो होता है वो इन्वर्टिबल नहीं है। मैनी 1 इंटू होता है वो भी इन्वर्टिबल नहीं है। मैनी 1 इंटू होता है ये भी इन्वर्टिबल नहीं है। और अगर 1 1 इंटू भी कर दें इसको, सपोज दिस एंड दिस इज 1 1 इंटू 1 का 1 से है 1 1, लेकिन क्योंकि एक एलिमेंट खाली रह गया इसलिए इनटू है, अब इधर से इधर नहीं है। लेकिन ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। 1 1 क्या गारंटी देता है? एक की इमेज एक ही है, इधर किसी की भी दो प्री इमेजेस नहीं है। ऑन टू क्या गारंटी देता है? कोई भी खाली नहीं है। तो जब इधर भी कोई खाली ना रहे एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो इससे एसोसिएट ना हुआ हो, और मोरओवर हर एक की एक ही प्री इमेज हो, तो हम x से y में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो y से x में इसका इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल इन्वर्टिबल function. A function which is injective and bijective, surjective. इंजेक्शन सर्जेक्शन, ऑन टू होने का मतलब सर्जेक्टिव। तो ये सर्जेक्टिव है, ये पूरा काम में नहीं आया, पूरा कोडोमेन काम में नहीं आया, नॉट सर्जेक्टिव। ये पूरा कोडोमेन काम में नहीं आया, नॉट सर्जेक्टिव। ये पूरा कोडोमेन काम में नहीं आया, नॉट सर्जेक्टिव। तो जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 मतलब एक ही प्री इमेज हो हर एक एलिमेंट की, ऑन टू हो मतलब हर एक की एक ना एक प्री इमेज जरूर हो, ऐसे ही फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो सबसे पहले तो हम नेक्स्ट सेशन में ये बात करेंगे कि कौन से फंक्शंस, ये तो सारे ग्राफिकल है और ये देखते समझ में आ रहे हैं, हम कुछ ऐसे लेंगे मैथमेटिकल एग्जांपल्स पहले 11th क्लास से समझने के लिए कि कौन कौन से फंक्शन 1 1 है और कौन कौन से ऑन टू है। फिर हम बात करेंगे 1 1 ऑन टू प्रूव करने और इनवर्स निकालने की। तब तक आप फंक्शन क्या है और इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है। इंजेक्टिव वो है जिसमें इंजेक्शन लगा एक का एक से, एक का एक से, यानी किसी की एक की भी दो प्री इमेजेस ना हो। ऑन टू क्या है? पूरा अगर कोडोमेन काम आ जाए दैट इज ऑन टू। अगर कोई एक भी एलिमेंट कोडोमेन में खाली रह जाए तो इनटू। जो ऑन टू है वो इनटू नहीं होगा, जो इनटू है वो ऑन टू, यानी इन दोनों में से एक होगा। और ऊपर 1 1 और मैनी 1, जो 1 1 है वो मैनी 1 नहीं है और जो मैनी 1 है वो 1 1 नहीं है। तो इन दोनों में से एक, और जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दैट इज जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। जो इंजेक्शन भी हो और बाई सर्जेक्शन भी हो, तो दोनों जेक्शन है, बाई इंजेक्शन एंड सर्जेक्शन, दोनों जेक्शन, बाइसिकल जैसे दो, तो बाई जेक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या ऐसा जो इंजेक्शन भी हो और सर्जेक्शन भी हो उसको बाइजेक्शन बोलते हैं, और बाइजेक्शन ही invertible functions होते हैं। We will talk about invertible functions in the next session.